Very good afternoon, students. My name is Abhishek Chaube. I welcome you to my session, Legal Reasoning session. अभी तक हमने ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को जाना. Then we talked about the definition of tort. Then we talked about general defenses, जिसमें हमने inevitable accident किया है, voluntary non-fit injuria किया है और plaintiff the wrongdoer तक हमने अभी तक समझ लिया है. आई होप अभी तक आप सभी को सब समझ में आ रहा है और आप लोग आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर विद अ न्यू कंसेप्ट दैट दिस इज द फोर्थ डिफेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. दिस इज नेसेसिटी. इट सेज दैट even an intentional harm to an innocent person can be caused provided that act must have been committed in order to prevent greater harm. इसको हम और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए चुपचाप that this concept is based upon a legal maxim which says that necessitas non habet legem. इट इज अ लीगल मैक्सिम. अभी तक आप समझ गए होंगे मैक्सिम क्या होता है. इसे लीगल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल लीगल फ्रेज से भी जाना जाता है कंसेप्ट. इसका मतलब क्या होता है? नेसेसिटी नोस नो लॉ. ये बात कानून भी समझता है, इंडियन लीगल सिस्टम भी समझता है, हर वो नागरिक जो कि रैशनल और रीजनेबल है. ये बात सभी समझते हैं कि कुछ कुछ दुविधा, कुछ कुछ सिचुएशन, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस इस तरह के होते हैं जहां पर लॉ से सहायता ले लेना, पुलिस प्रोटेक्शन अवेल कर लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे व्हाट शुड बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरह से इस तरह की सिचुएशन को डील किया जाए, वो हम आज पढ़ेंगे. पब्लिक गुड में किस तरह से पब्लिक गुड के लिए इस सिचुएशन को, इस कंसेप्ट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो पहले हमने ये जान लिया वो कौन सा प्रिंसिपल है जो इस चीज को गवर्न करता है. दैट इज अ लीगल मैक्सिम नेसेसिटास नॉन हैबिट लेजम, which means necessity knows no law. Now let's understand the definition of this concept, which says that even an intentional harm to an innocent person is permissible by law. Now this is where I face certain difficulties in order to comprehend this particular situation. Even an intentional harm to an innocent person is permissible by law. This is not absolute and annihilating all the legal principles, concepts of Indian legal system. How can a law permit an intentional damage, intentional harm, intentional injury to be inflicted upon a plaintiff who is innocent person? So this is complete, as this is violating the principle of natural justice. It is violating the principle enunciated in Maneka Gandhi versus Union of India, that law has to be just, fair and reasonable. Forget about the law. Procedure should also be just, fair and reasonable. और टॉर्ट में हम जैसे समझ चुके हैं बॉडी ऑफ अनरिटन लॉ है, तो वो इक्विटी, जस्ट और फेयरनेस के प्रिंसिपल ही टॉर्ट लॉ काम करता है. आई होप आई एम क्लियर. You guys following me so far? Now this definition is, sir, disputed. For example, why? Because this is annihilating these four principles of natural justice. This is incomplete, hence distorted. यहां पर एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, provided that
act must have been committed to prevent greater harm. Now, this is making some sense. The last line of the definition is very important in order to encapsulate the understanding of these nuances enshrined in this particular defense of necessity under law of tort. Now, it is making some sense to me now. Even an intentional harm to an innocent person is permissible by law, provided that here is an exception. Act must have been committed to prevent greater harm. Let's understand this particular concept enshrined in the last line with the help of certain allusion, with the help of certain examples. इसके स्पष्टीकरण पर अब हम बात करेंगे in next slide. I hope you have written down the notes. Now let's understand this concept. First of all, necessity में, let's say this is society X and there is a conflagration, widespread fire, आग लग जाती है एक सोसाइटी में और एडजेसेंट घर हैं ऐसे एक के बाद एक, इसके आगे भी 20 घर होते हैं. लेट्स से ये जो घर है, ये घर होता है आरव का, जो कुछ काम से दिल्ली गया हुआ है फॉर सर्टेन ऑफिशियल वर्क. ही इज नॉट प्रेजेंट इन हिज होम. एक व्यक्ति होता है बिल्ला. अब बिल्ला का यहाँ क्या रोल है इस मूवी में, ये हम जानेंगे थोड़ी देर से. अभी आप इतना समझिए, दिस इज सोसाइटी एक्स, जहां पर कॉन्फ्लैग्रेशन होता है, वाइड स्प्रेड फायर हो जाता है और जो आग है वो एक घर से दूसरे घर बढ़ रही है, यहां से यहां और फिर यहां से जहां जितने भी क्लस्टर हैं, जितने भी घर हैं एडजेसेंट, उन पर आग फैल रही है. ये नजारा देख रहा होता है बिल्ला काफी टाइम से और वो गणित लगा लेता है. इतना गणित तो वो लगा पाता है कि आग जो है एक के बाद एक के बाद एक घर से दूसरे घर फैल तो रही है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एज अ रीजनेबल पर्सन गणित लगा रहा है यहाँ पे बिल्ला कि अब ये बात तय है कि इस घर से इस घर पर आग जाएगी और ऐसे करते करते आगे के 20 घर भी जल सकते हैं. इसकी संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. बिल्ला इंट्रूड कर देते हैं, बिल्ला जाते हैं एंड ही पुल्ड डाउन द हाउस ऑफ आरव. आगे आग नहीं बढ़ती है, जिसके कारण बिल्ला जो करना चाह रहा था बिल्ला ने वो कर दिया, बिल्ला ने वो कर दिखाया. तालियों की गड़गड़ाहट, जितने भी लोकेलिटी के लोग हैं, आगे वाले 20 घर के लोग हैं, काफी अप्रिशिएट करते हैं बिल्ला को कि क्या बात है बिल्ला, आज से पहले तुमने सारे क्राइम किए हैं, आज तुमने एक्ट ऑफ गुड फेथ भी तुमने हमको दिखाया, शोकेस किया, दैट्स रियली अप्रिशिएबल. अब यहां पर जब आरव घर पे वापस आ रहा है दिल्ली से, तो मेन गेट पे उसे गार्ड रोकता है कि सर कहां जा रहे हैं. आरव कहता है पहली बार देख रहे हो क्या मुझे, तुम्हें पता नहीं है मेरा घर है यहाँ पे. तो गार्ड बोलता है कि वो नहीं रहा, आपका जो घर है वो बिल्ला ने गिरा दिया है. आरव आग बबूला होकर के जाता है, घर देखता है, घर तो समझ ही नहीं पाता है क्योंकि पुल डाउन है बाय बिल्ला. आरव फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बिल्ला फॉर सीकिंग डैमेजेस. वो कह रहा है डैमेज तो तुमने मुझे बहुत कर दिया है, अब डैमेजेस दो मुझे, मतलब कॉम्पनसेशन दो. I want you to answer. Is Billa liable here to pay the compensation to Arav? I hope you've understood the concept of necessity. In this particular case, यहाँ पर बिल्ला पर कोई भी liability नहीं बन रही है because he acted in good faith in order to prevent a greater harm. उसने एक घर तो पुल डाउन किया, ये तो मान रहे हैं माय लॉर्ड, लेकिन आगे के 20 घर भी उसने जलने से बचाए हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. This is a classic example to understand this particular case law
एंड ये सत्य घटना पर आधारित है बेटा। दिस इज कोप वर्सेस शार्क। इसी का अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, नो डाउट इन दिस। लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है, अगर एग्जामिनर जो ड्राफ्टर है क्वेश्चन पेपर का, वो चाहता है कि नहीं यार थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से हाई किया जाए, तो हिल जस्ट ऑल्टर सर्टेन फैक्ट, एक आध फैक्ट वो अलग कर देगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर जब आग लग रही होती है, यहां पर ऑलरेडी फायर ब्रिगेड अब आ गई है और यहां पर ऑलरेडी फायरमैन भी मौजूद हैं जो कि पानी डाल रहे हैं आग बुझाने के लिए। ये दृश्य बिल्ला देख पाता है, फिर भी वो जाकर के घर पुल डाउन कर देता है। अब यहां पर क्या बिल्ला डिफेंस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि जब फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, फायरमैन आग पर पानी डाल करके अपना काम कर रहे थे, तब तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मतलब वहां पर आवश्यकता नहीं थी, वहां पर नेसेसिटी तब नहीं थी। you'll be liable to pay the damages. Again, this particular concept जो मैंने आपको बताया है, ये भी केस लॉ पे है, कार्टर वर्सेस थॉमस। The name of the case is not important, but the concept is. I hope you understood both the concepts. पहले वाले केस में आग लग रही थी एक घर से दूसरे घर, व्यक्ति आता है बिल्ला, एक घर पुल डाउन कर देता है ताकि आग आगे ना बढ़ सके। यहां पर बिल्ला कैन वेरी वेल एस्टैब्लिश द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। दूसरा एग्जाम्पल, घरों में आग लग रही है, फायर ब्रिगेड आ जाती है, फायरमैन आ जाते हैं, आग बुझा रहे होते हैं, फिर भी बिल्ला ऑब्ट्रूड करता है, जाकर के घर गिरा देता है। यहां पर बिल्ला को डिफेंस नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसे हम धर्म संकट की दुविधा के नाम से भी जानते हैं। आइए हम समझते हैं। फर्स्टली, देयर इज अ शिप, लेट्स से इसका नाम है टाइटेनिया। दिस इज कैप्टन, और यहां पर बहुत सारे लोग इस शिप पर सवार हैं। लेट्स से दीज आर 100 इन नंबर। अब यहां पर समुद्र है और यहां पर इनको दिखती है एक बर्फीली चट्टान, जिसे हम इंग्लिश में आइसबर्ग के नाम से भी जानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। नाउ सामने तो नहीं जा सकते हैं, देयर आर ओनली 2 वेज लेफ्ट विथ द कैप्टन। एक अपस्ट्रीम ऊपर जा रहा है रास्ता, एक नीचे जा रहा है। यहां पर भी टू हिज शॉक एक बोट है जहां पर 20 लोग मौजूद हैं। इस बोट पर 20 लोग हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और ऊपर भी एक बोट है जिसमें 3 इनोसेंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपना फन करने आए हैं घर से बाहर। यहां पर जो कैप्टन है ये ऊपर से निकल जाता है इन लोगों के रन ओवर करते हुए। He ran over these 3 individuals. अब ये जो 3 लोग हैं, इनके घर वाले हैरान परेशान हैं। They want to file a suit against the captain of ship. Can he avail the defense of necessity as per the principle and definition and maxim given on the previous slide? भावनाओं में नहीं बहना है, भाव विभोर नहीं होना है। You have to make sure that you should not carried away by your emotions. यहां पर this captain can take the defense of necessity. Perfect example to understand the concept of necessity. Now I think we have laid down the foundation. हमें conceptual clarity आ चुकी है कि हमें बस इतना देखना है, भले ही डैमेज इंटेंशनल है, कैप्टन ने जानबूझ के ऊपर से निकाला है और इनोसेंट पर्सन को डैमेज किया है। 3 बच्चे इनोसेंट हैं, लेकिन क्या किया है, क्यों किया है ये? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म,
इन 20 लोगों को बचाने के लिए उसने इस तरह का काम किया है। अंडरस्टूड? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। मान लीजिए ये बोट ही है, यहां पर 4 इंडिविजुअल्स निकलते हैं दरिया की सैर पे। ए, बी, सी एंड डी सब राशन पानी लेकर के लोग निकलते हैं कि यार 4-5 दिन बाद ही अब जो नाव है वो तट की तरफ मुड़ेगी, तब तक हम यही आनंद प्राप्त करेंगे। बहुत रह लिए जमीन पर, अब हम दरिया की हलचल पे महफूज होंगे, उससे हम रूबरू होंगे। लेकिन होता क्या है बेटा, अब है ये दरिया, कभी खौफनाक रूप भी दिखा देगी अपना। एक लहर उठती है बहुत बड़ी, जिसके कारण पूरा सामान इनका पानी में गिर जाता है। अब इनके पास ना खाना है, पानी तो खूब सारा है लेकिन पोर्टेबल नहीं है, पीने योग्य नहीं है क्योंकि खारा पानी है। अब 2 दिन बीत जाते हैं बिना खाने पीने के। इनको एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये तय है, एक दिन और अगर ऐसा निकला तो बोट तो हो सकता है तट पे पहुंच जाए, लेकिन हम उस टाइम पे लाइव नहीं रहेंगे। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि लेट अस, मैं कह नहीं पाऊंगा और आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आई होप आप समझ गए हैं। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो माइनर को इन लोगों ने कंज्यूम कर लिया है अपन इन 3 लोगों को बचाने के लिए, ये तो इसमें बात तय है कि अब ये तो नहीं रहा, लेकिन ये तीनों बच गए। क्या ये तीनों लायबल रहेंगे या ये तीनों डिफेंस ले सकते हैं नेसेसिटी का अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट if being faced by institution of civil suit under law of tort in civil court? You can make a next heading, act of God. And this is your homework, damnum fatale. What is the meaning of this particular maxim? इसमें हम देखेंगे नेचुरल इवेंट्स अनफोर्सीन unavoidable despite taking ordinary care, caution और skill। यहां पे बस हमें ये जानने की जरूरत है कि इंजरी जो है मस्ट बी कॉज्ड बाय नेचुरल इवेंट्स। without any intervention of human agency। तो अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि सर दिस इज समवॉट साउंडिंग सिमिलर टू द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। उसी तरह का डैमेज है बेटा, सॉरी उसी तरह का डिफेंस है ये। इनएविटेबल एक्सीडेंट में भी हमने देखा था which is unavoidable, which cannot be avoided despite taking reasonable care, caution और skill। लेकिन वहां पर आपने ध्यान अगर दिया हो तो मैंने वहां पर नेचुरल फोर्स वर्ड आपको नहीं लिखवाया है, पन्ने पलट करके आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये एक्ट ऑफ गॉड के लिए है, पर्टिकुलरली जहां पर आपको नेचुरल फोर्सेस दिखते हैं, टॉर्नेडो दिखता है, साइक्लोन दिखता है, हेवी रेनफॉल दिखता है, ड्राउट दिखता है,
एक्सेसिव फ्रॉस्ट दिखता है, स्टॉर्म दिखता है, इन सभी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ नेचुरल फोर्स की बात की जा रही है। और नेचुरल फोर्स की अगर बात की जा रही है तो डैमनम फैटाइल की बात की जा रही है, और डैमनम फैटाइल की बात की जा रही है तो यहाँ एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बात की जा रही है। यू कैन टेक डाउन द नोट्स। एक चीज और इसमें लिख लेना बेटा एड ऑन करके, प्लस विदाउट एनी ह्यूमन फॉल्ट और नेग्लिजेंस, दैट्स इट। इतने ही कीवर्ड्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनकी सहायता से हम सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जितने भी एक्ट ऑफ गॉड पे बन सकते हैं इस दुनिया में। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट, ये सब अपनी नोटबुक पे लिख लो, जो भी वर्ड बोर्ड पे लिखा है ये सारे आपके लिए रेलिवेंट है। सॉरी, नथिंग ऑन दिस बोर्ड इज बिसाइड द मार्क, कुछ भी इसमें इररिलेवेंट नहीं है, ये सभी आपके लिए रेलिवेंट है। आई होप यू हैव टेकन डाउन द नोट्स। Now let's understand this particular concept with certain case laws, and that too landmark case. So we are starting with the landmark case known as Nicholas versus Marshland. This is very important case law. The defense of act of God is firstly recognized in this particular case law, which makes it a landmark case law. What happened in this case law? Let's understand this. There were certain artificial lakes owned by defendant. And these are artificial lakes. यहां पर इसके ऊपर ब्रिज है एक, जो कि बिलोंग कर रहा है प्लेंटिफ को। आर्टिफिशियल लेक के ऊपर एक ब्रिज है जो कि बिलोंग करता है प्लेंटिफ। अब एक दिन क्या होता है, सत्य घटना पर आधारित है बेटा ये, भारी घनघोर वर्षा होती है। दैनिक भास्कर की भाषा में कहूं तो मूसलाधार बारिश होती है। इस तरह की कि ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरह की बारिश उस समय पर विटनेस नहीं की गई थी। जब ये बारिश हुई तो ये कहा गया उस टाइम पे कि ऐसी बारिश आज तक हमने नहीं देखी। मतलब घनघोर वर्षा हुई बेटा, बरसों रे मेघा मेघा वाली बारिश हुई है। यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है, मतलब यहाँ पर हैवी रेनफॉल है, नॉट जस्ट अ मियर रेनफॉल। ये यहाँ पे देखने वाली बात है, that it's a heavy rainfall. Now let's understand this. As a result of this heavy rainfall, ये जो है ओवरफ्लो कर जाते हैं आर्टिफिशियल लेक, और ये साथ में डैमेज कर देते हैं प्लेंटिफ का ब्रिज, और ब्रिज को बहा ले जाते हैं अपने साथ फोर्स के साथ। ये बात जब प्लेंटिफ को पता लगती है तो प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ सूट फाइल कर देता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। नाउ यू टेल मी whether defendant can avail the defense of act of God or not. अभी हम देख लेते हैं सर कर पाएगा या नहीं। नेचुरल फोर्स तो है सर, नेचुरल इवेंट है, ठीक है। अनफोर्सीन था, ह्यूमन हिस्ट्री में सर पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। अनअवॉइडेबल था सर, इतनी भारी वर्षा अवॉइड कैसे की जा सकती है, नेचुरल इवेंट्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है सर, ठीक है सर। तीनों इंग्रेडिएंट यहाँ फुलफिल हो गए हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी का तो सर कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे। डिफेंडेंट ने आके जब वर्षा हो रही थी तो ब्रिज हिलाया थोड़ी है प्लेंटिफ का,
यहाँ पे नेग्लिजेंस एज सच नहीं है, नेग्लिजेंस भी नहीं है, फॉल्ट भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ह्यूमन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इंजुरी कॉज हुई है बाय नेचुरल इवेंट्स, ये भी सही है, और ड्यू टू द हेवी रेनफॉल he can avail the defense of act of God. This is a landmark case. Kindly write down in your notebook. आजीवन आप लोगों के काम आएगा ये। हम समझ चुके हैं नेचुरल इवेंट जो कि अनअवॉइडेबल हो, अनफोर्सिएबल हो, जिसे रीजनेबली फोर्स ही नहीं किया जा सकता, तब without any human intervention or negligence on the part of human, he can very well seek the defense of act of God. I hope I'm clear. Now we are proceeding further. Let's take an example of a next case law जो कि इंडिया में ही हुआ है, कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर वही इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप जवाब दे सकते हैं जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे लिखाए हैं। The name of case is कल्लूलाल versus हेमचंद। क्वेश्चन किस तरह से आपको आ सकता है? लेट्स से you have to variegate the keywords in a state of चिरापुंजी। अब ये लोकेलिटी जो है is prone to heavy rainfall, ये हमको नाम से ही समझ में आ रहा है सर, चिरापुंजी में तो बादल टकराते हैं सर, ऊंची पहाड़ी के कारण वहीं पे ही वर्षा होती है ज्यादातर, और वहां पर आम बात है सर, ये भी आम बात है सर, यहाँ पे चिरापुंजी में घनघोर वर्षा का होना यहाँ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में नहीं देखा जाएगा सर, ये तो वहां के लोगों के लिए आम बात है, ठीक है। फिर से बेटा चिरापुंजी में लेट्स से ये ए है, इसके 2 बच्चे हैं, और ये जो घर है ये है बी का, और इस सोसाइटी में 50 घर रहते हैं, 50 घर आई मीन। बारिश होती है बहुत तेज, जिसके कारण सिर्फ बी के घर की ये वाली वॉल डैमेज हो जाती है, जो यहां गिर जाती है और बच्चों को अपने साथ बहा ले जाती है, जो सीरियसली इंजर्ड है। This person filed a suit against this person. He wants to take the defense of act of God. क्या एक्ट ऑफ गॉड से मिलेगा? नेचुरल फोर्स तो है सर, नो डाउट, लेकिन अनफोर्सिबल नहीं है सर। यहाँ के रहने वाले व्यक्ति रीजनेबली फोर्स ही कर सकते हैं, इस तरह की मूसलाधार वर्षा होना यह आम बात है। तो उस तरह से सर मतलब ड्यूटी ऑफ केयर यहाँ के लोगों की बढ़ जाएगी। दोपहर में गाना बजाना 30 के वॉल्यूम पे बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन यही गाना रात के 2 बजे बजाना न्यूसेंस कहलाएगा सर। मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से आपका एक्ट लॉफुल से अनलॉफुल हो रहा है, वैसे ही लोकेलिटी के हिसाब से भी आपका आंसर चेंज हो सकता है। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट इन एक्ट ऑफ गॉड। तो ध्यान देना बेटा क्वेश्चन पे, लोकेलिटी पर भी डिपेंड करेगा, नेचुरल फोर्स पर भी डिपेंड करेगा, सिर्फ रेनफॉल नहीं हैवी रेनफॉल होना चाहिए, सिर्फ फ्रॉस्ट नहीं एक्सेसिव फ्रॉस्ट होना चाहिए। तो सर यहाँ पे जो एक्सेप्शन आपने एक बताया था, विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ अ ह्यूमन और ऑफ अ डिफेंडेंट, लेकिन सर यहाँ पर एक चीज तो हाईलाइट हो रही है, which is res ipsa loquitur. This is a maxim which means thing is speaking for itself. प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है सर। बारिश तो हुई चिरापुंजी में, 50 घर इंटैक्ट रहे, एक ही घर की वॉल कैसे कोलैप्स कर गई, ये एक ही जगह इशारा कर रही है कि ओमिशन होगा, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन नहीं करवाया होगा बी ने घर का, प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं होगा बी का घर, क्रेवाइसेस होंगे काफी टाइम से ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ना स्टेट ऑफ डिलैपिडेशन चले गए ड्यू टू द
heavy rainfall, which was not an extraordinary event as per the locality of the factual situation given set forth. यहां पर फॉल्ट हाईलाइट हो रहा है सर, और अगर फॉल्ट हाईलाइट हो गया तो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये हम VNFI में भी पढ़ चुके हैं सर। सो आई होप आई एम क्लियर। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, एंड आई वांट योर आंसर्स ऑन द कमेंट सेक्शन। इंडियन केस लॉ है, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आंसर आप देख लेंगे। ये घर है बेटा, और ये कोर्टयार्ड है, इसे तुम समझ लो आंगन है बेटा। यहां पर इन्होंने एक पोस्टर लगवाया हुआ है, बड़ा सा मूवी थिएटर, मतलब सॉरी एक मूवी का मूवी एडवर्टाइजमेंट है। एक स्टॉर्म आता है बेटा, हवा का झोंका आता है कैलकाटा, और कैलकाटा में जब ये केस हुआ, इट्स अ रियल केस लॉ, उस टाइम पे ये स्टॉर्म आना एक नॉर्मल इवेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। और ये सड़क है, मेन रोड पे घर था डिफेंडेंट का। तो जैसी हवा का झोंका आया बेटा, जैसे प्लेंटिफ, अब आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। ये उड़ करके लग जाता है इसके सर पे, एंड नाउ ही वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट दिस पर्सन। कैन दिस पर्सन अवेल द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड? Answer should be in your comment section. My name is Abhishek Chaube. I hope I'm clear with the defenses of act of God and necessity. In next lecture, we'll understand the concept of mistake and statutory authority. Then we'll be done with the defenses in law of tort. जिसके बाद हम अग्रसर होंगे nuisance की ओर। I hope I'm clear. That's all for today's lecture. Take care. See you in next lecture. Bye.